جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب خیریت؟ میں آپ کے پاس آنے کا اصل مقصد میرا یہ ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے ابھی کسی کو بھی فالو کرنے سے پہلے تحقیق کرتی ہے نا، ریسرچ کرتی ہے۔ ابھی ان کے معاملے میں سب سے بہترین فتنہ میں معلوم اس کو آپ جو کہتے ہیں، لیکن مجھے کچھ باتیں اس کی ایسی لگتی، میں انجینئر کا ساتھ نہیں دینے آیا ہوں، اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج جو نوجوان نسلوں کی بات ہے، جو ان کے ذہنوں میں بات چل رہی ہے، وہ جو مرزا انجینئر علی مرزا جو سوالات اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کتنا درست ہے کتنا نہیں۔ مجھے آپ کو اس سے جواب چاہیے، کیا آپ جواب دیں گے؟ بالکل تیار ہوں میں۔ بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ جو موجودہ نسل جو ہے وہ انجینئر کے چکر میں کچھ لوگ، ہر کوئی نہیں، جس طرح ہمارے ہندوستان میں موجودہ جو سرکار ہے جی، وہ سرکار جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں ان کو گمراہ کر رہی ہے اور وہ راجنیتی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اسی طرح انجینئر کا جو سب سے بڑی چیز ہے کہ انجینئر جو ہے دعوت اسلامی میں رہا بہت دن، اس کو تو دین کا کچھ نالج بھی نہیں تھا، وہ دعوت اسلامی میں رہا، دعوت اسلامی سے بہت کچھ اس نے سیکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ جب دیکھا کہ کچھ غلطیوں کی وجہ سے دعوت اسلامی والوں نے اس کو نکال دیا، اس کے اندر ایک نیا فتنہ پیدا ہو گیا، کیا کرے وہ، اور اس نے ہوتا ہے نا وائرل کرنے کے لیے اس نے ایک ایسی قسم کے جو خرافات اس نے کرنا شروع کر دیا۔ اہل سنت کے اندر جو سب سے بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا وہ کیا تھا؟ دیوبند اور بریلوی، اس مکتب فکر کے جتنے بھی علماء کرام ہیں اس کے پر اس نے ریسرچ کیا، جانا کہ کیا اختلافات اس میں ہیں۔ اس کے بعد جب کتابوں کا مطالعہ کیا، چشتی رسول اللہ کا مسئلہ اس نے اٹھایا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ چشتی رسول اللہ جو اس نے مسئلہ اٹھایا کتابوں میں، آخر وہ باتیں ہیں تبھی تو اٹھایا، کتابوں میں باتیں ہے، لیکن چاہے وہ دیوبند کے ہو، اہل حدیث کے علماء ہو، اس بات کو مانتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اس میں جو دیا گیا ہے وہ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو منسوخ کیا گیا ہے وہ کتاب ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ 200-300-400 برس کے بعد وہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بریلی علماء اس کے چشتی رسول اللہ کا سپورٹ میں بھی آتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے، اگر انجینئر صحیح میں اپنے ماں باپ کی اولاد اگر ہے تو یہ ثابت کر دے کہ کوئی بھی بریلی کا کوئی بھی یا اہل سنت کا کوئی بھی ایک ریکسا چلانے والا بھی اگر یہ بول دے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ وہ چشتی رسول اللہ کے مطلب ہے کہ وہ میں مانتا ہوں ان کو، جو کبھی نہیں بول سکتا، جو اپنے آپ کو سنی بولتے ہیں، بریلوی بولتے ہیں، وہ اکثر ڈھول تاشے بجاتے نظر آتے ہیں، مزارات میں جا کر کے غلط حرکت کر، ان کی عورتیں بھی ساتھ میں جاتی ہے، تو اس طرح تو بولنے کا اس کا بنتا ہے نا، وہ تو بولیں گے ہی نا۔ میرا کہنے کا مقصد ہے یہ غلط چیز ہے، اس کو کوئی بھی اہل سنت کر تو بریلوی رہے نا، پھر علماء کیوں نہیں سمجھاتے ہیں؟ علماء سمجھاتے ہیں، اپنی کتابوں میں بالکل انہوں نے لکھا ہے سب چیز کے بارے میں، خرافات کا رد کیا انہوں نے، لکھا ہوا ہے، اس کو بدعت سیاح میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء تو بولتے ہیں، آپ قانون شریعت دیکھ لو، پڑھیے جا کے۔ چلے ٹھیک ہے، یہ معاملات ہو گئے۔ اب جیسے ولی اللہ کے معاملے میں اب قرآن صاف طور پہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد مانگتے، تو پھر ہم یہ جو دیگر ہے وہ سوال کرتا ہے، یہ میرا سوال نہیں ہے۔ غیر اللہ سے مدد میں الحمدللہ میں خود ایک بریلوی ہوں، لیکن میں اس کے سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب قرآن نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرو، اللہ ہی سے مدد مانگو، یہاں پہ دیکھیں اختصار اللہ ہی سے مدد مانگو، تو پھر لوگ دوسرے سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ دیکھیے گمراہ کیسے کرتے ہیں یہ لوگ، جو جاہل لوگ ہیں، اب وہ لوگ جو دین سے ناشنا ہے، پڑھے تو بہت ہے، انجینئر ہے، جج ہے، بالشتر ہے، پڑھے تو بہت ہے، لیکن دین سے ناشنا ہے۔ انجینئر یہ کہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ مولویوں کے چکر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، مولوی کے چکر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ میں انجینئر کا بتاتا ہوں، جس کو عربی لغت نہیں معلوم ہے، جس کو عربی گرامر نہیں معلوم ہے، قواعد نہیں معلوم ہے، اس کو کیا مطلب معلوم ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وہ اصل معنی کیا ہے۔ اس میں حقیقی مراد یہ ہے کہ
चाहे वो मदद वसीला हो या बिला वसीला हो, सब कुछ मदद करने वाला रब्बे कायनात की जात है। वो मिजाजी तौर पर हो या हकीकी तौर पर है। इया कना अबुदू, इया जो है खासकर हकीकी ही तौर पर अल्लाह ही मदद करता है और अल्लाह ही की मदद करना चाहिए, इसमें ही है। अगर यही बात हो जाए तो कोई इंसान अगर बोल दे कि हमारी मदद करो तो उस पर ये आयत फट से फिट कर दो, इया कना अबुदू व इया कना नस्तईन। चलो एक आयत के तो हम मानते हैं अल्लाह ही की मदद की जाती है, लेकिन जहां तुम बोलोगे मुझे एक गिलास पानी दे दो, बोलेगा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ही से मदद चाहो, तुम मुझसे क्यों मदद मांगते हो? नहीं तो ये कहा है, समझे मेरी बात समझे। इससे मदद मांगने के मामला में ना जिंदा है ना मुर्दा है, कुछ नहीं है, कुछ है कि नहीं है? अगर इसमें आप दिखाइए कहाँ इसमें लिखा हुआ कि जिंदा से आप मदद मांगना इसमें मतलब दुरुस्त है? नहीं तो वो तो कहते हैं कि हजरत एक हदीस है, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु गालिबन जब हुजूर का विसाल हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हदीस बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि हजरत अब्बास गालिबन मेरे ख्याल जहन से उतर रहा, लेकिन मैं हदीस आपको पूरी बताता हूँ। हुजूर का विसाल हो गया और मदीने में कहत साली पड़ गई, तो वो कहते हैं जब वो गए सहाबा कराम तो हुजूर के वसीले से दुआ नहीं किए, हजरत उनके चचा अब्बास गालिबन उनका नाम था, उनके वसीले से किए। तो अब यहाँ पे वो तो कहते हैं कि जब हुजूर जब तक जिंदा थे तो वसीला लिया जा सकता था, अब वो अगर इंतकाल फरमा गया, हुजूर विसाल फरमा गया, अब उनके चचा के नाम से लिया जा रहा है, तो आप फिर हुजूर के नाम से क्यों नहीं लिए? ये कहने का मकसद है। अच्छा ये मुझे बताए पहले, सबसे पहले बताए कि वसीला जो है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान का जो वसीला जो लिया जाता था बाद वफात, मेरे नबी ने कहा किस हदीस में मना फरमा दिया कि बाद वफात वसीला मांगना शिर्क और हराम है? तो फिर सहाबा ने क्यों नहीं लिया वसीला हुजूर का, उनके चचा का क्यों लिया? बात है बिल्कुल है, सहाबा इकराम अगर ना ले ये उनकी मर्जी है, ये उनका कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हमारे आइम्मा शरीयत में मतलब मना नहीं है, शरीयत में तो नहीं है ना। अच्छा मतलब वही कोई अगर ख्वाजा गरीब नवाज का वसीला ले, वैसे पाक का ना ले, तो मतलब वैसे पाक का इनकार करने वाला तो नहीं है ना। चले बहुत से अंबिया कराम जो थे वो मेरे नबी के वसीले से दुआ किया करते थे, इसका मतलब नहीं है कि सब पर वो वाजिब, सब पर वो सब लोग बोले कि नहीं, मतलब है कि सहाबा कराम, अरे ये मोहब्बत की बात है। अगर सहाबा कराम नबी के चाचा का वसीला लेते थे, मेरे नबी ने फरमाया जैसा लेते थे, तो वो मोहब्बत की बात थी, समझे ना। और यहाँ बात अगर कोई नहीं लेता इसमें क्या अच्छा नहीं है आप, मैंने तो कह दिया इय्याका नअबुदु, मेरी बात सुन ले, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो क्या कुरान में कोई आयत ऐसी है कि वसीला लेना चाहिए? अल्लाह ताला क्या फरमाता है कुरान में? वसीला तलाश करो नमाज और सब्र से, नमाज और सब्र से। आप हाफिज हो ना यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं आपसे सवालात इसलिए कर रहा हूँ ताकि नौजवानों तक ये पैगाम पहुंचे, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, मैंने खुद पढ़ा छठा पारा में, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपसे ये कि इसमें कहा जाता है ये कि ये जो वसीला या फिर दुआ है, आप मदद किसी से इंसानी तौर पे मांग सकते हैं, दुआ के तौर पे नहीं मांग सकते। जैसे लोग जाते हैं मज़ारात पे और औलिया अल्लाह के साथ करीब जा करके उसके नाम से वसीले से दुआ करते हैं, तो बिल्कुल कुरान में कहता है कि हराम है, ये है वो है। कुरान में कहाँ कहता है हराम है? आप गलत कॉन्सेप्ट में पढ़ गए जनाब वाला। नहीं, उन लोगों की बात, उनकी मतलब कि मैं बता रहा हूँ बात है ना, उनकी ही बात में करने आया हूँ ना, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ, माफ फरमाए मुझे, मैं जानता हूँ कि उन्होंने कह दिया वसीला हराम है। भाई वसीला कैसे हराम है? अगर वसीला को हराम कह देंगे तो नमाज और सब्र क्या है? नमाज क्या अल्लाह है? गैरुल्लाह है, गैरुल्लाह है कि नहीं है? सब्र क्या है? गैरुल्लाह है कि नहीं है? बिल्कुल। तो फिर जब गैरुल्लाह से आप वसीला तलाश कर सकते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ आपकी नमाज कबूल हो कि नहीं हो, आपका रोजा कबूल हो कि नहीं हो, लेकिन नबी की जात वो है जो हर मर्तबे फिक्र के नजदीक कबूल है कि नहीं है? तो उनका वसीला सबसे अख्तर है कि नहीं, सबसे बेहतर है कि नहीं है? तो उनका वसीला क्यों नहीं तलाश करे? हम नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, हमको खुद पता नहीं मेरी नमाज कबूल हो रही कि नहीं हो रही है, लेकिन नबी की जात वो है जिनके सदके में अल्लाह ताला हर चीज को कबूल फरमा लेता है। अब बताएं मुझे, जवाब दे, उनका वसीला क्यों नहीं सबसे अफजल और आला है? आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। इंजीनियर अली मिर्जा इस दौर का बहुत बड़ा फितना है जो नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। अब मैं एक बात बताऊं, उसके और सवालात हैं जो मैं दूसरे सेशन में आपसे करूंगा, तो मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब चाहिए, ठीक है? क्योंकि आज का फितना वो है बहुत बड़ा और नौजवान नस्ल उसकी तरफ जा रही है, उसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? आखिरी बात, उसके बाद खत्म करें। पैगाम यही है कि जितने भी हमारे अहले सुन्नत के जो नौजवान हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप YouTube में सबकी तकरीर जो आप सुनते हो, आपको ये पता नहीं चलता है कि वो पगड़ी बांधा हुआ क्या है। जिस तरह शेर के
शेर के लिबास में अगर कोई भेड़िया छुपा रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा। बस उसी तरह ये है, ऐसे ऐसे लोगों है जो सहाबा को गाली दे रहे हैं और ये अल्लाह को गाली दे रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अच्छा, वसल्लम को बोल रहे हैं। वलियों के बारे में इतनी दुश्मनी है, इसके बारे में कुछ आप फरमाना चाहें? बिल्कुल है। आप इब्ने सबा की इतिहास उठा के देख लीजिए। इब्ने सबा का एक कॉन्सेप्ट क्या था, वो चाहता तो था, वो तो कहते हैं कि बाबा कोई शय ही नहीं है, इस तरह बदतमीजी करते हैं, ये अच्छा, सब। मेरी बात अब ये सुनिए, आप- उनकी बोली नौजवान नस्ल बोल रहे हैं। बस 2 मिनट में बात खत्म करें, वीडियो लंबी हो रही है। देखिए, यहूदी नसारा के टारगेट में सबसे पहले मेरे नबी की जाते मुबारक, बेशक, इसलिए मेरे नबी पर वो लोग तबर्रा बोलते थे, मेरे नबी को के शान में गुस्ताखी करते थे। ये आप जानते हो। मेरे नबी की वफात के बाद उनके निशाने पर कौन आया? सहाबा कराम आए। सहाबा कराम में बिलखुसूस कौन आए? खुलफाए राशिदीन आए। एक नया फिरका वजूद में आया जिसका नाम सबाइया है। मौला अली से बॉक्स करने वाले खारजी फिरके हो गए ना, फितना डाला गया ना। जब इन लोग का दौर सहाबा का खत्म हो गया तो दुश्मनी किन पर आया? आइम्मा पर। क्योंकि पूरे सहाबा कराम के जितने भी अक़वाल थे जो हदीस की शक्ल में जो उसको जमा करने वाले कौन शख्सियत थे? कौन थे? ये आइम्मा दीन थे, जिन्होंने इतनी मेहनत की एक हदीस को हासिल करने के लिए, कितना कितना दूर का सफर इन लोगों ने किया। इसीलिए ये यहूदी नसारा के एजेंट जो है, जो गुमराह लोग हैं, जो बददीन फिरके के लोग हैं, ये आइम्मा के शान में गुस्ताखी करने लगे और नौजवान तबका को आइम्मा से दूर करने लगे। क्या उन्होंने दिन की कुर्बानी नहीं दिया था? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी। अभी मैं हज़रत एक बात बताता हूँ, मैंने भी शायद पढ़ी थी कि किसी हदीस, सियासित्ता की हदीस में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं 2 लोगों से ऐलान जंग करता हूँ। गलीबन अगर मैं सही हो तो आप मेरी इस्लाह फरमा दे। एक पहला वो जो सूद लेता है या सूद का कारोबार करता है, दूसरा वो जिससे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ जो मेरे वलियों से दुश्मनी रखता है। तो ये हदीस में आया है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। ये बताएं कि ये पैगाम जो इंजीनियर नौजवानों को दे रहा है कि बाबा बदतमीजी कर रहा है, गौसे पाक हो, ख्वाजा गरीब नवाज हो, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? इंजीनियर की औकात नहीं है वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दिया जाए। इंजीनियर अगर अपने माँ बाप की सही औलाद है, अगर हलाली औलाद है, तो वो ऐलान कर दे, जिस तरह वो उसके शागिर्द लोग उलमा अहले सुन्नत के पास जाकर के अपने सवालात पेश करते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, इंजीनियर अगर अपने सही में अपने माँ बाप की औलाद है तो वो भी ऐलान कर दे कि मैं भी ऐलान करता हूँ। इंजीनियर ऐसे बोले और वो ऐलान दे कि मुझसे भी आके सवालात करो, मैं उसका जवाब दूंगा, अगर इंजीनियर सही में अपने माँ बाप की औलाद है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे उसकी औकात नहीं है कि किसी से वो जीत जाए डिबेट में। वो तो बड़े बड़े उलमा को चैलेंज करता है ना। और मुनाजिर को तो अरे बाबा बोलता है कि मेरी अम्मा ने मना किया मुनाजरा करने से। उसकी अम्मा ने मुनाजरा करने से मना किया। उसकी औकात नहीं है कि मदरसा के किसी भी तालिब इल्म से जो अहले सुन्नत का हो या अल्लामा आसिफ जलाली के किसी शागिर्द से मेरा चैलेंज है वो मुनाजरा कर ले, अगर सही में अपने माँ बाप का पैदार हो। वो भाग जाता है मेरा मुनाजरा से, उनकी अम्मा ने मना किया मुनाजरा करने से। चलिए, मैं इंजीनियर नदीम कादरी उसको चैलेंज करता हूँ, अगर वो सही में अपनी माँ बाप की औलाद है तो मुझसे बहस करता हूँ। आप अपने आप में इंजीनियर जो लगा रहे हैं, वजह क्या है? उसके मैं इंजीनियर, उसमें वजह की क्या बात है? वो पगड़ी पहन करके बोलता है कि मैं पगड़ी इसलिए पहना हूँ ताकि अहले सुन्नत के लोग मुझ पर आ जाए, मेरे पास आया हो, मैं उनको मतलब है कि अपने जमात में शामिल करते रहूं। अच्छा, मतलब आप बता रहे हैं कि नहीं आप उस टॉपिक पर बात ना करें। जी। लेकिन बस मैं ही कहना चाहता हूँ कि उसकी औकात नहीं है। मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, बात क्या है, मैं इस्लामिक मुहक्किक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्चर हूँ। मुझसे आगे बहस कर ले उसके अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह मैं अभी 50 से ज्यादा शागिर्द खड़ा कर दूंगा जो अभी इंजीनियर के चक्कर में फंस गए थे। उससे डिबेट मेरी हुई, आखिर में वो तौबा करे, जिनको कुरान पढ़ने का ढंग नहीं हुआ करके औलिया अल्लाह के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये तो देखा है, बहुत सारे नाज़रा कुरान पढ़ते वक्त खुद मानता है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की किताब वो नहीं है, उन्होंने नहीं कहा है बात। ये बात मुनाज़रा में अहले सुन्नत ने कई बात ही बात कह दी थी, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की किताब नहीं चिश्ती रसूलुल्लाह। चलिए, ये सेशन इतना ही रहने दीजिए, वीडियो लंबी हो रही है। उसमें इलाहा किया गया है। यहाँ की गादमी साहब जिनको उस्ताद मानता है, डॉक्टर इसरार साहब, इनके मौलाना इसहाक साहब जहन्नमी, तो थोड़ा उस पर बोलो, हिम्मत है तो औकात तुम्हारी। अब तुम सही में माँ बाप की सही पैदावार है तो तुम जा करके मुनाजरा करके दिखाओ अहले सुन्नत के आम शागिर्द से, तुम्हारी कितनी गलतियां निकल जाएगी। तुम्हें ताकत ही नहीं है, कुव्वत ही नहीं है। तुम्हारे मजमे में जो सवाल करता है तो तुम उसको बिठा देते हो, और उसके बाद दूसरा सवाल करने का हक नहीं होता है। लेकिन हमसे हजारों सवाल करता है कि जवाब दो, आओ हिम्मत औकात अगर तो मिर्जा के शागिर्दों को चैलेंज है मेरा, इनकी औकात नहीं है कभी कोई सवालों का जवाब देना। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अगले सेशन में मैं आपसे
اسی پہ بات کروں گا کہ کیا اولیاء اکرام دین میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، جس طرح ان کے نام سے آج اس طرح بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں. تو اسی حوالے سے میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے بات کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.